Good morning, all of you. Today we start reading of jurisprudence. As we can see, this is Dr. N.V. Pranjape, studying jurisprudence and legal theory. And this is our first unit. We are going to start with first topic. The first part of this book, Province of Jurisprudence and Legal Theory, Unit 1, Jurisprudence, its meaning and nature and scope. And the first topic is jurisprudence, its meaning. And directly we are going to Unit 1, Jurisprudence, its meaning, nature and scope. The word jurisprudence is derived from a Latin word jurisprudentia, which in its widest sense means knowledge of law or skill in law. The Latin word juris means law and prudentia means skill or knowledge. Thus, jurisprudence signifies knowledge of law and its application. In this sense, it covers the whole body of legal principle in the world. The history of the concept of law reveals that jurisprudence has assumed different meaning at different times. It is therefore difficult to attempt singular definition of the term. It has a long history of evolution beginning from classical Greek period to 21st century modern jurisprudence, with numerous changes in its nature in various stages of its evolution. तो समझते हैं इसमें क्या बताया गया है. द वर्ड jurisprudence इज ड्राइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड jurisprudential. jurisprudence जो है jurisprudential से लिया गया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, विच इन इट्स वाइडर सेंस मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ. jurisprudence का अगर वाइड सेंस देखें हम तो वो क्या है, नॉलेज ऑफ लॉ और स्किल इन लॉ, यानी लॉ के अंदर स्किल. द लैटिन वर्ड juris मीन्स लॉ एंड जो juris का मतलब क्या है, लॉ. प्रूडेंसिया का मतलब है स्किल और नॉलेज. थस jurisprudence signifies knowledge of law and its application. तो jurisprudence का मतलब क्या हुआ, knowledge of law and its application. लॉ की नॉलेज और उसकी एप्लीकेशन. भी लॉ है क्या और वो कहाँ अप्लाई होगा. In this sense, it cover the whole body of legal principles in the world. तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाई ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी लीगल प्रिंसिपल हैं उनकी जो बॉडी है उस होल बॉडी को कवर करता है ये. The history of the concept of law reveal that jurisprudence has assumed different meaning at different time. अगर इसकी हिस्ट्री को देखें तो हमें पता लगेगा कि जो jurisprudence है उसके अलग अलग टाइम पर अलग अलग मीनिंग हैं. It is therefore difficult to attempt a singular definition of the term. तो jurisprudence की एक singular definition हम attempt करना difficult है, मतलब एक ही definition हम उसकी नहीं दे सकते. It has a long history of evolution beginning from the classical Greek period to 21st century modern jurisprudence. तो यह है जो इसकी जो हिस्ट्री है evolution की, वो बिगिनिंग फ्रॉम क्लासिकल ग्रीक पीरियड से स्टार्ट होकर और 21st सेंचुरी जो है मॉडर्न jurisprudence विद न्यूमरस चेंज इन इट्स नेचर इन द वेरी स्टेज ऑफ इट्स एवोल्यूशन. तो उसमें देखते हैं हम काफ़ी सारे न्यूमरस चेंजेस आते हैं और उसका नेचर भी चेंज होता है और उसकी स्टेजेस भी, मतलब अलग अलग तरह से ये इवोल्व होता है jurisprudence. आगे चलते हैं. During the formative era of the common law in England, the term jurisprudence was being used in generic sense to include the study of various facets of law. तो ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईरा ऑफ कॉमन लॉ इन इंग्लैंड, जब इंग्लैंड में कॉमन लॉ की ईरा थी उस समय द टर्म jurisprudence वाज बीइंग यूज्ड इन जेनरिक सेंस. उस समय जो है jurisprudence को एक जेनरिक सेंस में यूज किया जाता टू इंक्लूड द स्टडी ऑफ वेरियस फेसेट ऑफ लॉ. और उसमें क्या आता था उसके अंदर, भाई लॉ के अंदर जितने भी फैक्ट्स हैं उनको स्टडी करना. However, in the early decade of the 19th century, with the theory propounded by the Bentham and his disciple Austin, the term jurisprudence acquired a definite meaning. Bentham differentiated between the study of law as it is and as it ought to be and called them ex
expositorial and sensorial jurisprudence respectively. Later, Austin concerned himself mainly with the formal analysis of the English law and its related concept, which still continue to be the basic content of English jurisprudence. तो जैसे हम देख रहे हैं कि भी इसके अंदर बताया है जो ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव इरा ऑफ कॉमन लॉ इन इंग्लैंड, जब इंग्लैंड के अंदर लॉ का इरा था, मतलब लॉ को डिजाइन किया जा रहा था, तो जूरिस्प्रूडेंस जो है वो जेनरिक सेंस में यूज किया जा रहा था। और जो इसके अंदर क्या क्या था भी, लॉ के जो फैक्ट हैं उनको डाला गया। और इसको अगर शुरू में देखें हम 19th सेंचुरी से, इन द अर्ली डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, जो विद द थ्योरी प्रोपाउंड बाय बेंथम ने जो थ्योरी दी जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, और उसका डिसिप्लिन जो उसका डिसिप्लिन रहा है ऑस्टिन, उसका जो शिष्य है, द टर्म जूरिस्प्रूडेंस एक्वायर्ड डेफिनेट मीनिंग। तो उन्होंने बताया कि जो इसका जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग है जो वो डेफिनेट मीनिंग है। बेंथम डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टडी ऑफ लॉ एज इट इज़। तो बेंथम ने अलग अलग इसको डिफरेंशिएट किया, किसको, स्टडी ऑफ लॉ को भी, एज इट इज़ भी, कानून जो है, लॉ जो है वो है क्या, एंड एज इट ought टू बी, और ये होना क्या चाहिए, एंड कॉल them expositorial. Expositorial means it is, and sensorial means as it ought to be, है क्या और होना क्या चाहिए, jurisprudence respectively। तो ये बेंथम ने डिफरेंशिएट किए थे स्टडी ऑफ लॉ को दो टर्म में। ऑस्टिन कंसर्न हिमसेल्फ मेनली विद द फॉर्मल एनालिसिस ऑफ इंग्लिश लॉ। बाद में क्या हुआ, ऑस्टिन ने अपने आप को फॉर्मल एनालिसिस इंग्लिश लॉ के ऊपर फोकस किया, एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट्स which still continue to be the basic content of English jurisprudence। तो वो जो एनालिसिस था उसके बेस पे उसने जो कंसेप्ट दिए वो आज के टाइम पर भी इंग्लिश jurisprudence का बेसिक कंटेंट माना जाता है। It is well known that law being a dynamic concept, it changes with the evolution of society under different socio-economic and political conditions. The rapid changes in the modern time have given rise to new problems and issues which are to be tackled by law through pragmatic approach in interpreting law. While doing so, the modern jurisprudence has to take into consideration the social ethos and changing pattern of the society, which immensely widens its scope as a science of law. It is well known that law being a dynamic concept। तो लॉ जो है वो एक डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक मतलब स्थिर नहीं है, डायनेमिक मतलब जो चेंज होता रहता है। इट चेंज विद द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, जैसे जैसे सोसाइटी इवोल्व होती है वैसे वैसे जो लॉ है वो भी चेंज होता रहता है अंडर डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन। जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर या इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशन चेंज होती रहती हैं, उसी तरह से लॉ भी चेंज होता रहता है। द रैपिड चेंज इन द मॉडर्न टाइम हैव गिवन राइज टू न्यू प्रॉब्लम। जैसे जैसे जो भी मॉडर्न टाइम के अंदर जैसे जैसे चेंज आ रहे हैं वैसे वैसे जो है प्रॉब्लम भी अलग तरह की आती हैं, एंड इश्यूज विच आर टू बी टैकल बाय द लॉ। तो जो भी प्रॉब्लम है उनको लॉ को टैकल करना होता है थ्रू प्रैग्मेटिक अप्रोच इन इंटरप्रेटिंग लॉ, फिर उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। वाइल डूइंग सो द मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन द सोशल इथियोस। तो जो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस है उसके अंदर हम क्या क्या कंसिडर करते हैं, सोशल इथियोस एंड चेंजिंग पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, और जो पैटर्न जो चेंज हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, विच इमेंसली वाइडन द स्कोप एज ए साइंस ऑफ लॉ। तो जो जूरिस्प्रूडेंस है दैट इज़ द साइंस ऑफ लॉ, इसका स्कोप जो है वो बढ़ जाता है, मतलब सोसाइटी चेंज हो रही तो वैसे वैसे लॉ भी चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हमने पढ़ा जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग, हमने समझा जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।